So hi guys, मैं हूं अक्षय and we have seen a steep rise in communal talks in India right after 2014 और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि कम्युनलिज्म बेसिकली है क्या, कम्युनलिज्म इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और क्या क्या वो मेजर कॉजेज रहे फॉर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। सो मूविंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट हिस्ट्री स्कॉलर बिपिन चंद्रा, communalism in India is a modern ideology that cannot be predated to 1857, that was the British era, and he further classified communalism into three stages. So the first one being liberal communalism. So what happens in liberal communalism is like दो different communities हैं, like Hindus and Muslims. वो basically कहीं ना कहीं peacefully एक society में co-exist कर रहे हैं। उनके अंदर ये feeling तो है कि हमारे interest और हमारा culture और हमारा lifestyle ये सब कुछ अलग अलग है, but they don't have any problem in coexisting in a society together, that too peacefully. That is why it is considered to be an acceptable form of communalism, according to Bipin Chandra. Moving forward to second point, that is second stage, that is hardcore communalism. So in hardcore communalism, both the communities, let's say Hindus and Muslims, they started developing a feeling that what is good for us cannot be good for them, and what is good for them cannot be good for us. That is why Bipin Chandra considered hardcore communalism as an unacceptable form of communalism. Now moving forward to third stage, that is extreme communalism. So according to Bipin Chandra, extreme communalism में दोनों ही communities के लोग, like Hindus and Muslims, they started to feel like they cannot live under the same roof together. That is why Bipin Chandra considered extreme communalism as highly dangerous and unacceptable form of communalism. तो चलिए अब देखते हैं what are the major causes behind the rise of communalism in India. So the first cause being divide and rule policy after 1857 revolt. So basically Britishers thought that Muslims are the one majorly in ruling positions by that time. So they thought Muslims ने ही कहीं ना कहीं encourage किया था 1857 revolt. साथ ही साथ उन्हें ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो 1857 revolt में ब्रिटिशर्स ने देखी थी वो पसंद नहीं आ रही थी और उन्हें एक कम्युनल रिफ्ट क्रिएट करना था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। और उसके लिए उन्होंने किया क्या, दे स्टार्टेड इल ट्रीटिंग मुस्लिम्स एंड टेकिंग अनजस्टिफाइड एक्शंस अगेंस्ट मुस्लिम्स व्हाइल फेवरिंग हिंदूज एट द सेम टाइम, जिससे कि एक कम्युनल रिफ्ट क्रिएट हो जाए और कभी भी आगे से ऐसा हिंदूज और मुस्लिम्स का ऐसा कोई यूनाइटेड स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हमें देखने को ना मिले। नाउ द सेकंड कॉज बीइंग पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड creation of separate electorates. So this was a very clever move by Britishers. इससे बेसिकली वो ये चाहते थे कि एक ह्यूज कम्युनल डिवाइड क्रिएट हो जाए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ताकि वो एक यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट जो अगेंस्ट चल रहा है ब्रिटिशर्स के, हिंदूज और मुस्लिम्स जिसमें मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। नाउ द थर्ड कॉज इज कम्युनल वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. Britishers already know that history plays a key role in development of an ideology, and Britishers started writing it in a very communal way. Basically what they did was divided it into three parts, divided total Indian history into three parts. First one being ancient history, they called it as an golden age. The second one being medieval history, they called it as a dark age, and third one being modern history, where the Britishers appeared, so they called it as an age of great administrators. So that is how they created a communal divide again between Hindus and Muslims. Now the fourth cause is socio-religious reform movements. So सारे तो नहीं, but कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऐसे थे दैट कंट्रीब्यूटेड इन द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, लाइक अलीगढ़ मूवमेंट दैट लेटर बिकेम एंटी हिंदू, एंड वहाबी मूवमेंट व्हिच वाज एंटी ब्रिटिश बट एंटी हिंदू एंड एंटी सिख एज वेल. एंड द फिफ्थ कॉज इज रोल प्लेड बाय कम्युनल प्रेस. सो जैसे ही लॉर्ड रिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करते हैं, पीपल स्टार्टेड राइटिंग व्हाटएवर दे वांट टू. हिंदूज मुस्लिम्स के अगेंस्ट लिख रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदूज के अगेंस्ट लिख रहे हैं, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन तो है बट केवल उन पर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिख रहे हैं. ब्रिटिशर्स रूलिंग पावर में थे, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट लिखने से रोकें, बट इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम दे इंटेंशनली एनकरेज्ड इट, and for the very same reason. And the sixth cause is flaws in extremist national movements. Mass mobilization के लिए तिलक और दूसरे लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के द्वारा जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, जैसे कि गणपति पूजा और दुर्गा पूजा और ऐसी दूसरी स्ट्रैटेजीज, इससे उन्होंने मास मोबिलाइज तो कर लिया बट केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का. मुस्लिम्स और दूसरे कम्युनिटीज वाले इस चीज से बहुत ज्यादा एलिनेटेड फील करने लगे फ्रॉम द फ्रंटलाइन नेशनल मूवमेंट. ऑल्दो ये अनइंटेंशनल था बट इससे कहीं ना कहीं कम्युनल रिफ्ट और बढ़ता ही गया. नाउ टू कंक्लूड, कम्युनलिज्म इन इंडिया कैन ऑल्सो बी सीन
as a failure of Indian National Congress, first in stopping partition of Bengal in 1906, then failure in stopping separate electorates in 1909, and then tossed in extremist national movements. तो बेसिकली जब तक ये चीजें एड्रेस की गई गांधीयन एरा में, बाय दैट टाइम इट वाज लाइक एन आइडिया हुज टाइम हैज ऑलरेडी बीन पास्ड एंड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म वर ऑलरेडी सोन डीप इनफ इनटू द इंडियन पॉलिटिकल सॉइल दैट फर्दर लीड्स टू द टू नेशन थ्योरी, एंड देन आगे जाके हमने एक हार्ट रेंचिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया देखा.